क्लास चल रही है क्या वैसे? चलिए तो ऐसे तो होगा नहीं एक बार। शेयर तो नहीं कर रखी है अभी मैंने भेज दिया। क्या करना है कुछ लिखना है? से ये भी तो नहीं कर रही, उस कौन से कर रही कल 11 बजे था ना सेशन। तो डाउट करिए। Hello, good morning, sir. Very good morning. We are so happy to see you back, sir. Oh, great. Like, Same here. really missed you in these days. Like, please don't go away now. We good again. So how many are still supposed to be coming? I think we've got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 students now. I hope more are coming. So what have you done in between? I think you might have had a couple of classes lately. So what have you been discussing on those classes? We did like social media post and the posters, and we are done with the layer style, and like that's it. Okay, all right. Just give me a second. Okay, so should we start with the session? Yeah, sure. Yes, sir. All right, good. So I'll probably be taking classes from where I have left, right? So probably even if you have learned in between something, that will always be helpful for you. So what we've been discussing lately is, you can see the screen? Yes, sir. अरे किसी को आना है तो आ जाएगा. हाँ हाँ आ जाओ कम. Okay, so lately we've been discussing, I'll take your questions in between since it's already 12:16. So I think without wasting time, we'll begin with the session and save some time for the further questions.
What we've been discussing lately was the pen tool, if I could remember a bit of it. So I'll continue taking this pen tool and probably be discussing a few more things. In between, if you know certain things, if Parul has already taken the topic, you can just let me know. No, so मैं फिर उसकी जगह पे कुछ और ले लूँगा. So this is a pen tool. I told you that we can make silhouettes, ja cutout कह सकते हैं common language में. So let's say if I take maybe ख्याल से take it something like fruit basket or something. That is what I've been discussing lately. So यहाँ से हम कोई image को लेते हैं और तो ये तो इसका हो गया बेसिक पर्पस. Let's say if I say copy this image, I come and I'll bring it. I'll take the Control N for the new document. The very first document comes with clipboard. Clipboard is the size of the copied image. Copy किया उसका size ही होता है, right? You create and then you paste it. So you should not be worried कि क्या size आएगा, वो हमेशा perfect आएगी उसमें. तो एक बार रिवाइज करते हुए विल ऑलवेज मेक श्योर जब भी आप कटआउट बनाएं, जब भी सिल्हूट क्रिएट करें, गो टू द नेविगेटर पैनल एंड द नेविगेटर इज डिफॉल्ट माइट बी 100, इट माइट बी लेस देन 100. जब आप कटआउट बनाएं तो कोशिश करें उसको 200% पे बढ़ाएं. जो चीज बड़े पे अच्छी दिखेगी वो छोटे पे ऑब्वियसली अच्छी दिखेगी, है ना. तो आप 200 या तो आप यहाँ से लिख दो, 200% लिख दिया मैंने, या फिर आप 300 लिखो, 400 लिखो, आपके ऊपर है. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जितना ज्यादा बड़े पे करोगे उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा. लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, एक स्टेज ऐसी आएगी कि पिक्सेलेशन ज्यादा हो जाएगा तो आपको ही नहीं दिखेगा अच्छे से, तो आप करोगे कैसे. तो यहाँ पे नेविगेटर को आगे पीछे करके व्यू ना सेटअप कर सकते हो. बार बार लिखने की भी कोई खास आवश्यकता नहीं है. So you can just do that. So I manage just to settle it somewhere like 285%, and then I just make this cutout. But that's how I'm doing it. And then your default setting should be, if you can see that there is a path coming here on the top, right? So that it should be set on the path as long as you are creating a cutout. So मैं यहाँ पे Alt I'm taking, and then I'm taking another node, then I'm pressing the Alt again, and then clicking on this thing, and I'll do this, and you can be very fast over the time period. You'll be very fast. You must understand one fact, that the 30% of the Photoshop is used 70% time. 70% of the Photoshop is used only 30% time. So this is a 70% time use करने वाला टूल है. क्या? पेन टूल. हालांकि टेक्नोलॉजी बहुत विकसित हो गई है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से फोटोशॉप में कटआउट्स वैसे भी बनाना बहुत आसान हो गया है. तो शायद अब ये वाला नोशन 3070 के में शायद पेन टूल फिट ना बैठे. ये थोड़ा लेजेंड टाइप का टूल बन गया है. अब थोड़ा मतलब होता है ना जब हीरो और थोड़ा एजेड हो जाता है तो वैसा वाला हो गया. अब ये थोड़ा वैसा नहीं रहा, लेकिन हाँ ठीक है, स्टिल इट्स अ वेरी कूल टूल. तो यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे पेन टूल से कटआउट बनाया. नाउ वेयर आई हैव टू गो, आई हैव टू गो टू द पाथ पैलेट. वेयर इज अ पाथ पैलेट? दिस इज अ पाथ पैलेट. दिस इज अ पाथ पैलेट. पाथ पैलेट कहीं किसी के साथ so we'll go and we'll take the tab जो command है. This is a wonderful command. The tab command से सारा palettes आ जाते हैं, tab से सब चले भी जाते हैं. जैसे मैं हमेशा tab प्रेस करके काम करता हूँ. मेरे को नहीं लगता whenever I want to work in a canvas, जब भी हम घर में भी काम करते हैं तो हम आसपास साफ सफाई रख के काम करते हैं ना, तो मजा आता है, फील आती है काम की. तो इससे आपको काम की फील आ सकती है. टैब आपको वापस चाहिए तो आप वापस टैब करके भुला लो. और कभी कभी एक और भी कमांड होती है, ऑल्ट टैब. ऑल्ट टैब, शिफ्ट टैब, सॉरी शिफ्ट टैब में क्या रहेगा कि पैलेट गायब हो जाएंगी लेकिन टूल वूल सब दिखेंगे. ठीक है ना. और टैब में तो बस टैब हो जाएगा और बिल्कुल एफ एक बार और एफ प्रेस करोगे तो ये भी पता चलना बंद हो जाएगा कि फोटोशॉप चल रहा है कि क्या चल रहा है ना. तो पूरी ही टीम हो जाएगी. एफ का मतलब फुल स्क्रीन. फुल स्क्रीन 1, फुल स्क्रीन 2, फुल स्क्रीन 3. तो फुल स्क्रीन 3 पे सब कुछ गायब हो गया. फुल स्क्रीन 2 पे मेन्यू रह गए, यानी कि जो मिड यूजर हैं उन लोग के लिए ठीक है, और बिल्कुल अर्ली यूजर्स हैं उन लोग के लिए तो पहले वाले में काम करें तो बढ़िया रहेगा. ठीक है ना. तो इस तरीके से चलते हैं. तो हमने यहाँ पे मान लो ये सब हटा दिया और यहाँ से हम पाथ पैलेट को ले लेते हैं. और तो यहाँ से जाके आप सॉरी
सो यहाँ पे जाके आप इसको ले सकते हैं। अब यहाँ पे कंट्रोल एंटर करोगे तो सिलेक्शन भी कन्वर्ट हो जाएगी। कंट्रोल एंटर से पाथ एक्टिव होना चाहिए, ठीक है ना। और कंट्रोल एंटर करने से भी आप ये कर सकते हो। कंट्रोल जे से क्या हो जाता है, लेयर बन जाती है। न्यू लेयर बनने से क्या होगा, ये अलग आ गया, ठीक है जी। और इस न्यू लेयर को आप मूव टूल से या तो इसको इधर उधर कर सकते हैं या फिर आप जैसे भी करना। अच्छा, ये तो हो गया एक रिवाइज करते हुए हम लोगों ने बात की। अभी हम थोड़ा इसका नेक्स्ट लेवल एस्पेक्ट पे चल रहे हैं पेन टूल के। सो द पेन टूल का नेक्स्ट लेवल एस्पेक्ट क्या है, विल कीप अ न्यू डॉक्यूमेंट। मेरे ख्याल से हम इसी तरीके से एक ये ले लेते हैं और इसके बाद क्या कर रहे हैं, हम पेन टूल पे जा रहे हैं। ये रहा पेन टूल। पेन टूल पे जाके हम और भी कुछ कर सकते हैं। लेट्स से कि पेन टूल का जरूरी नहीं है कि वो पेन टूल ही हो। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक ऐसा कर्व बनाया, कर्व बना दिया और ये क्या है, दिस इज अ पाथ, दिस इज अ पाथ। आई गो टू द टेक्स्ट टूल दिस टाइम। कहाँ गया, टेक्स्ट टूल पे गया। टेक्स्ट टूल ये रहा, टेक्स्ट टूल। As you could see the text tool, आप जैसे टेक्स्ट टूल पे जा रहे हो तो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट टूल का काम क्या है, राइटिंग, यहाँ पे लिखना शुरू कर देगा, है ना। तो ये इसका काम है, जो भी किया आपने और उसको आपको लिख के देगा वो। लेकिन अभी हम पेन टूल के पर्सपेक्टिव में पेन टूल के साथ टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल करने के लिए सोच रहे हैं। तो I'll go to the text tool and I'll let press। देखो इसकी शेप अपने आप बदल जाएगी, देखना ध्यान से, जैसे पाथ पे आएगा ये ऐसा हो गया। इसका मतलब क्या है, text on path, text on path. So I'll just click here somewhere and I'll start writing। I'll sign T G C or whatever। So ये यहाँ पे है। अब मैं आपको इसको फिर से बताने की कोशिश करता हूँ। इस बारी मैं क्या कर रहा हूँ कि पाथ, ये जो वर्क पाथ है इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं यहाँ से और हम पाथ बना रहे हैं किससे, इलिप्स से। इलिप्स से कैसे पाथ बना रहे हो, आपने तो हमें इलिप्स से शेप बनानी सिखाई थी। आप क्या कर सकते हो, यहाँ से शेप की जगह पे क्या कर दोगे, पाथ कर दोगे ना। तो जब हम ऐसे बनाएंगे तो क्या बना, ये सिर्फ पाथ बना, कोई नई लेयर वेयर नहीं बनी कुछ भी, ठीक है ना। देयर इज नो लेयर बिकॉज दिस इज ओनली क्रिएटेड इन पाथ, है ना। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि डिफॉल्ट क्या होता है, डिफॉल्ट होता है शेप। जो भी बनाओगे तो उसकी शेप बन जाएगी, जो भी फोरग्राउंड कलर होगा उससे शेप बन जाएगी। But this time around I'm creating a path, so I'll just create a path and then I'll go to the text tool again, okay, and this time it just looks more manageable, right? So I'll just press somewhere and then I start writing something, है ना। So let's start writing something today। वो क्या कहाँ लिखे, क्यों नहीं रहा, क्यों नहीं है अभी। अच्छा, यहाँ से टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया था तो यहाँ पे इसको हमने कुछ चेंज कर दिया, राइट। सो यहाँ पे टेक्स्ट हुआ चेंज। अब बाकी जो सब टेक्स्ट की जो भी खूबियां हैं वो सब हमारे पास रहती हैं। अब मैं यहाँ पे एक सेकंड के लिए कोई सिंपल सा कोई फॉन्ट रख लेते हैं जो कम जगह लेता हो। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे सो if I just say this, so let's start writing something today। सारा नहीं आ रहा क्योंकि ये टेक्स्ट का साइज बड़ा है। जब टेक्स्ट का साइज आप छोटा कर लोगे तो बाकी सब भी आना शुरू हो जाएगा। तो कंट्रोल ए करके फिर से आप टेक्स्ट का साइज सेटअप कर लो। 18 पॉइंट कर दिया, 20 पॉइंट, 24 पॉइंट, 36 पॉइंट, व्हाटएवर, है ना। आपने इस तरीके से इसको कर दिया। अब आप कहोगे सर ये तो लेफ्ट की साइड आ रहा है, मेरे को इसको घुमाना है थोड़ा सा, तो ऐसे कैसे चलेगा काम। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, फिर हमें कुछ करना पड़ेगा जी। तो हम यहाँ पे जाएंगे, इस पाथ को हमने एक्टिवेट किया यहाँ से और जैसे इधर पे जाओगे तो देख सकते हो कि इसको हम बाहर की साइड यदि लिखेंगे, देखो मेरा कर्सर बाहर है ना, तो बाहर सेट हो रहा है और घूम भी रहा है। अच्छा, फिर से आप लोग नहीं पकड़ पाओ तो फिर से मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पे जाना है, किस पे जाना है, पाथ सिलेक्शन टूल पे। और पाथ सिलेक्शन टूल पे जब आप क्लिक करोगे तो देखो ऐसा कुछ आ जाएगा। और देखो आप जब बाहर की साइड पे इसको क्लिक करोगे, फोटोशॉप वाले इम्तिहान हमारा लेते रहते हैं भाई, सीधा सीधा बता दे यार कहीं पे। तो ये बाहर से ये ऐसे किया, राइट, तो बाहर आ गया। लेकिन जब कर्सर को अंदर लाओगे खींचते हुए, ड्रैग करते हुए, तो ये अंदर आ जाएगा। तो अब ये अंदर बाहर का सीन क्या है,
अंदर बाहर का सीन ये है। सो हमने यहाँ पे अच्छा यहाँ पे हमने ऐसे कर लिया, राइट? ठीक है ना, कर लिया। तो ये लेयर बन गई इसकी। पाथ है लेकिन पाथ दिखेगा नहीं, ठीक है ना। तो ऑफ कोर्स पाथ जो होता है बाय डिफॉल्ट प्रिंट नहीं होता, विजिबल नहीं होता, उसको यूजर को या मतलब जो डिजाइनर है उसके लिए होता है, ठीक है ना। तो फाइनल ऑडियंस को नहीं दिखाई देता। तो हमने यहाँ पे लिखा इसको। अब इसमें और क्या क्या चीजें कर सकते हैं, तो देखो आप जो चीजें आपको करनी है, आप टेक्स्ट का साइज आप चेंज कर सकते हो, और तो यहाँ से आप अपने हिसाब से इसको सेट कर लो। अब ये मैंने एक सेट कर लिया, लेट्स से ये। तो यहाँ पे दूसरा काम करें, कुछ इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करें। इसको एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं। कंट्रोल जे करा हमने, तो एक और कॉपी बनी, और कंट्रोल टी कर दिया इसको, कंट्रोल टी करके क्या किया, छोटा किया। ऑल्ट प्रेस करोगे तो सेंटर से छोटा होगा, ठीक है ना। कंट्रोल टी करोगे तो बाय डिफॉल्ट छोटा होगा, और ऑल्ट प्रेस कर लोगे तो जो सेंटर होने की, जो छोटे होने की डायरेक्शन है, बीच से होगी, चारों तरफ से बराबर होगा। तो ये कर लिया भाई, है ये कर लिया। और इसको क्या ऐसे घुमा दो थोड़ा सा। तो अभी हमने कंट्रोल टी करके दो चीजें की हैं, छोटा किया और एक स्ट्रेट किया। दो चीजें रिकॉर्ड हो गई ना उसके सिस्टम में। और एंटर प्रेस करेंगे तो कौन सी शॉर्ट कमांड होती है जिससे कि बाद में रिपीट हो जाता है, ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट, यही बताया था ना आप लोगों को। अरे भाई मेरे साथ ऑनलाइन वाले भी मेरा हौसला अफजाई करते रहा करो, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आया समझ आपको? मैंने कंट्रोल टी करके छोटा किया और ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट टी करके इसको क्या कर सकता हूँ, देखो ये देख रहे हो। यस सर। तो होगा क्या, अब इन सब का टेक्स्ट बदल सकते हैं कि नहीं? तो वी कैन क्रिएट सम बेसिक स्टोरीज ही बना सकते हैं ना, डिजाइन स्टोरी कर सकते हैं। इसके ऊपर कुछ लिखा है, इसके ऊपर कुछ और, इसके ऊपर कुछ और, इसके ऊपर कुछ और, क्योंकि सब है तो एडिटेबल ही ना। Everything is editable, no? This is also editable, this is also editable, this is also editable. So everything is a text. T है, सबके ऊपर T लिखा हुआ है कि नहीं? तो आप एक अच्छा सा डिजाइन आइडिया भी इसके थ्रू क्रिएट कर सकते हो। किसी का कलर कुछ कर दो, किसी और का कलर कुछ और कर दो। इसका कलर लेट से रेड कर दिया, और किसी का कुछ। तो यू कैन जस्ट गो अहेड एंड कैन चूज दी। आप कोई अपनी एक छोटी सी पोयम आपने लिखी, पोयम को आपने इस तरीके से लिख दिया, और उसको क्या लिख दिया, जैसे कि आपने लिख दी एक लेट से कोई बाहर रेनबो निकला है, आपके मन में लिखा, कुछ लाइनें लिखने का मन किया, आपने लिखा, लेकिन उसमें आपने उसको टेक्स्ट, उसको एक रेनबो के साइज का एक पाथ बना दिया, और सातों कलर से, एक एक कलर से उसी शेप के अंदर। सो व्हाट विल डू, हम बस, मैं अभी तो इतना ज्यादा नहीं करके बता पाऊंगा क्योंकि चीज को करने में थोड़ा सा समय जरूर लगता है, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि मैंने ये रेनबो का स्टाइल बनाया, और इसको हम क्या करेंगे, इसको ठीक करेंगे, और एक अच्छा परफेक्ट रेनबो का स्टाइल बनाने के लिए एक इधर पे सेट कर देंगे, और इसके हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 करके सब पे कलरफुल करके लिख देंगे कि नहीं, और कहीं पे डाल देंगे। और पीछे से कहीं पे जरूरत पड़ी तो क्लाउड लाने हैं, तो हम लोग क्लाउड ले आएंगे भाई। क्लाउड कहाँ से ले आएंगे भाई, क्लाउड ले आएंगे यहाँ से, क्लाउड पीएनजी लिख देना। सो लेट्स बी अ स्मार्ट डिजाइनर रादर देन डिजाइनर पर से। तो यहाँ से हम लोगों ने कोई क्लाउड पीएनजी उठाया, चलो भाई ये तो ओरिजिनल वाले क्लाउड आ गए, है ना। और कोई शेप वाले भी आ जाएंगे, दोनों तरीके के आ सकते हैं कि नहीं, तो आपकी मर्जी है। यदि ओरिजिनल वाले उठाने तो मैं जैसे कि ये वाले क्लाउड उठा लेता हूँ, कौन से, ये वाले उठा लेता हूँ। तो ये पीएनजी है ना, आई एम श्योर कि ये पीएनजी ही होगा। लेट्स से ये पीएनजी है, इसको यहाँ से किया, और यहाँ पे जाके what we can do, डाउनलोड फुल साइज हम लोगों ने कर दिया। So is it coming, is it not coming, what, ये आ गई क्लाउड पीएनजी आ गई। शो इन दी फोल्डर उठाया, इसको हमने इधर से फोटोशॉप में लेके आए, एंड दिस विल क्रिएट इट्स ओन लेयर, एंड यहाँ पे ये आ गया। जब ये आया तो ये व्हाइट कलर का था, बट हमारा कैनवस तो already white color का है, so we have to change this color to something else. So what we'll do, let's say we'll fill it up. Oh, nothing is happening, alt नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है,
क्योंकि ये एक स्मार्ट लेयर है। तो इसको डबल क्लिक कर दोगे, जब डबल क्लिक करोगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेयर ओपन हो गया। यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, कलर डाल देना है। So we'll take some color of our choice. Let's say if that is the choice of my color. हाँ जी बताइए। हाँ ये लो, इसको मैंने कॉफी देगा मेरे को। So I'll just close this. इसको हम बंद कर देंगे। बस जब पूछेगा कि तो क्या करना है तो बोलना यस। तो वो कलर ठीक है ना, आप ऐसे इसको कहीं रख देना। अरे यार ये क्या बीच में आ रहा है, इसको हटा देते। तो ये वाली है ना लेयर, इसको छोटा कर दो। तो इसको यहाँ रख लो, ऑल्ट से यहाँ पे कर दो। अब इस दूसरे वाले को कोई और कलर चाहिए तो मैं मान लो, तो फिर इस पे डबल क्लिक कर देना, इसका कलर कुछ और कर देना। सो क्लाउड तो येलो होता नहीं है, लेकिन हमारी मर्जी, हमारा येलो भी क्लाउड ले लें तो क्या हो गया। तो इसका कुछ और कर लेते हो, लेकिन इसको यस कर दिया तो इसका कलर यहाँ पे जाएंगे जब, तो देखो अच्छा दोनों का सेम हो गया क्या। तो आप अलग अलग भी बना सकते। अच्छा आपको ये तामझाम से ना फुर्सत चाहिए हो, मान लो नहीं जाना बार बार डबल क्लिक करके, या झंझट लग रहा है आपको, है ना, मेरे को भी झंझट ही लगता है। तो ये इसके चक्कर में तो आप क्या करो, इसको कैसे, हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस स्मार्ट ऑब्जेक्ट एंड मेक इट वन ऑब्जेक्ट। नई लेयर बना लो, एम्प्टी। क्या बना लो, एम्प्टी लेयर। नई एम्प्टी लेयर बनाई और इन दोनों को सिलेक्ट किया, इसको और इसको क्या कर देना है, मर्ज। कंट्रोल ई इज फॉर मर्ज। राइट क्लिक करके भी आप कभी मैं बहुत ज्यादा आप लोगों को उस झंझट में डालता नहीं हूँ शॉर्ट कमांडों के, लास्ट पर्सन के मैं बहुत ज्यादा बोलूं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट कभी कभी याद नहीं कर पाते, लेकिन लिखते रहा करो हमेशा, अपनी पेन कॉपी अपने साथ रखा करो बैठते। तो कंट्रोल ई कर दिया, तो देखो अब ये गया ना, इसके ऊपर से ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट का चिन्ह चला गया क्या, नहीं, अब ये फ्री हो गया है। फ्री होने का आप बताया, कौन बताएगा इसके अंदर ये कलर चेंज करना हो तो क्या कमांड डालेंगे। यहाँ पे मैंने मान लो ये कलर चूज किया, अब इसमें ये फिल करना हो, इस वाले क्लाउड में ये कलर फिल करना हो तो कौन सी शॉर्ट कमांड है बताएगा। फिल करने की कमांड क्या होती है, Alt backspace. ऑल्ट बैकस्पेस। Backspace. ऑल्ट बैकस्पेस करने से क्या होगा, लेकिन ये पूरे में भर जाएगा, तो क्या Alt करें, plus Shift plus Backspace. वेरी गुड। क्या नाम था जी जिन्होंने बताया, अभिलाषा. वाह अभिलाषा, आपने तो खुश कर दिया। तो ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे इसको क्या किया, ऑल्ट के साथ शिफ्ट भी प्रेस कर देंगे, है? तो ये चीज हो जाएगी। दूसरा है ना कि बार बार डबल क्लिक करके जाना का चक्कर भी खत्म हो जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल इसमें इसके अंदर से स्मार्ट ऑब्जेक्ट का वो हटाना है तो क्या करना है, एक एम्प्टी लेयर बनाए, इस दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल ई करोगे तो उसके सामने से गायब हो गया। फिर आप जो मर्जी जैसे मर्जी आप इसको दो सबका कलर वलर चेंज कर सकते। तो एनीवेज हम क्लाउड के बारे में बात नहीं कर रहे थे, हम लोग तो पाथ के बारे में बात कर रहे थे। सो हमने यहाँ पे पाथ के बारे में एक बात तो आपसे की। अच्छा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं मसले को, है ना, तो थोड़ा सा करेंगे भाई, जरूरी है, जैसे जैसे जी कुछ पूछ रहे हैं कोई। Before you go ahead, like आपने अभी कॉपीज क्रिएट की थी ना अंदर ही अंदर, तो आपने कंट्रोल डी से किससे की थी? मैंने आल्ट कंट्रोल शिफ्ट टी से की थी। देखो फिर से बताता हूँ, शिफ्ट टी, टी फॉर ट्रांसफॉर्म। देखो ये बड़ा है एक ऑब्जेक्ट, ये पाथ की जगह मैं इसको शेप बना देता हूँ, तो ये एक शेप इस कलर से आ रही है, फोरग्राउंड कलर से। इसको एक और कॉपी बना ली, कंट्रोल टी किया, और कंट्रोल टी में जो कुछ भी रिकॉर्ड कर लोगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। कंट्रोल टी होना चाहिए लेकिन उस टाइम, तो कंट्रोल टी करते टाइम, अभी देखो कुछ भी नहीं किया था मैंने, अब मैं शुरू कर रहा हूँ। तो एक तो मैंने इसको इधर हिलाया, तो ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हुई, मूव। कौन सी हुई, मूव नंबर 1 हो गई। नंबर 2 इसको छोटा किया, ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, क्या हो गई, डबल क्लिक कर दिया इसको। अब इसको कैरी ऑन करना हो तो कमांड है ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट टी। क्या होगा, छोटा हुआ वो भी होगा,
जो नहीं हुआ है वो भी हुआ। लेकिन कैसे होगा? डुप्लीकेट के साथ। ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट किया, देखो हो गया ना, डुप्लीकेट हुआ कि नहीं? और सबकी लेयर भी बनती जा रही है और खूब सारे बना दिए। अब सबको एक साथ छोटा करना हो तो क्या करेंगे? सबको एक ही साथ सिलेक्ट कर लेंगे और एक तो ये कहाँ चले गए, देखो सब दिख रहे हैं कि नहीं? और कंट्रोल टी करके जहाँ तक है ना काइंड ऑफ हमारी बात को समझेगा। छोटा कर दिया कि नहीं? देखो, अंडरस्टूड? Yes, sir. And one more thing, like if we merge the layers, like with control E, how to unmerge them? If you we want cannot to. you cannot unmerge anything, ठीक है ना? आप उनको किसी भी चीज को जब आप मर्ज कर लेते हो तो अनमर्ज नहीं कर सकते। तो फिर आप फिर कैसे करेंगे? क्या करना चाहिए इसके लिए? ग्रुप नहीं बनाओ, स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लो। क्या बना लो? स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लो। तो ऐसा कर लो, स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ये रहा ना। तो देखो ऐसा तो लग रहा है जैसे मर्ज हो गई, लेकिन मर्ज है नहीं। बोलोगे सर इसका क्या फायदा होगा? मर्ज करने में और इसमें क्या डिफरेंस है, बताओ, कौन बताएगा? मर्ज करने में और स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाने में क्या डिफरेंस है? क्योंकि स्मार्ट ऑब्जेक्ट में मर्ज नहीं हुई है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट में जब आप डबल क्लिक करोगे इसके आइकन पे तो जैसी जितनी भी लेयर थी सब दिख रही है। नहीं है ग्रुप के अंदर प्रॉपर्टी एक ही लेयर है। ग्रुप में एक फोल्डर होता है, फोल्डर के अंदर लेयर्स होती है। जब स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनता है तो एक लेयर की तरह दिखता है। इसका फायदा क्या होता है कि यदि मैं मान लो सब मैजेंटा कलर के हैं, मैं सब अलग अलग चाहता हूं, तो मैं यहाँ से इसका अलग कलर कर लूंगा, ले भाई, है ना? इसका इसको दूसरे कलर का डालना है मेरे को, तो इसका दूसरा कलर उठा लिया, यहाँ से कोई और कलर उठा दिया। तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट एडिटेबल तो है ना। सो दिस इज व्हाट वी कैन डू and simply we can do this thing. तो अब मैं जब इसको बंद करूंगा, बस सिंपली क्या करना है, इसको बंद करना है। बंद करने से पहले देख लो क्या लिखा है, क्या लिखा है, यस बोलना है, क्या बोलना है, और यहाँ पे तो Excuse me, sir. यस प्लीज। So sound disturbance आ रही है मेरी। मेरे साउंड स्टॉप, मेरे रूम में तो पिन ऑफ साइलेंस है, क्या हो रहा है? देख लेना जो जिनके रूम में थोड़ा सा साउंड का कुछ है तो वो अपना म्यूट कर ले माइक को। अभी आ रही है क्या? No, sir. Better. No, sir. आई होप सो। तो यहाँ पे इस तरह से हमने एक ये बना लिया, राइट? तो इससे क्या फायदा? अब देखो इसको फिर कंट्रोल जे किया, तो फिर कंट्रोल टी कर दिया। अब रिकॉर्डिंग शुरू हो गई कि नहीं? ट्रांसफॉर्मेशन की रिकॉर्डिंग। तो अब इस बारी मैंने क्या किया, इस बारी में एक यहाँ पे इसका एक्सेस उठा के यहाँ रख दिया और इस बारी रोटेट भी कर रहा हूँ कि नहीं? और रोटेट के साथ आप चाहो तो छोटा भी कर लो हल्का सा। तो यानी कि अब दो चीजें की है मैंने, एक रोटेशन और एक स्केल। और फिर ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट ही करूंगा तो क्या होगा? देखो ओ ये कुछ और ही होने लग गया। क्यों भाई, ऐसा क्यों हो गया? कंट्रोल टी और इसका एक्सेस चेंज किया, इसको रोटेट किया, इसको स्केल किया एंड ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट टी किया। व्हाई इज इट हैपनिंग लाइक दिस? अच्छा, क्योंकि मूव तो नहीं किया। कंट्रोल शिफ्ट टी थोड़ा सा बगी लग रहा है मेरे को। और कंट्रोल टी करके हमने मान लो इसको यहाँ पे रखाया। some problem. Why is this problem coming? This problem still persists even if we make this even if we try to get away with the this thing and then say control J, control T, control J for copy, control T for transform. I'll just shift this axis. I'll just do this thing, alt control shift T, then it works fine. So smart object mein I think still find this buggy,
बट नहीं है। तो देख रहे हैं ना यहाँ पे हम कुछ अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स वगैरह बना सकते हैं कि नहीं? सो दिस व्हाट आई कैन एक्चुअली डू दिस. So anyways, that is something we were not discussing. I think control T और alt control shift T का तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा, है ना? तो उससे आप चल सकते हो. इसी वही मैंने रोटेशन पे किया था. अच्छा, एक और चीज, तो पेन टूल में सॉरी पेन टूल कह रहा हूँ मैं, पाथ टूल में पाथ हम किससे बना रहे हैं इस बारी? इलिप्स से. सो इलिप्स मैंने बनाया और इलिप्स में हमने यहाँ पे इलिप्स को बनाया और यहाँ पे हमने ये लिखा और टेक्स्ट टूल पे गए. तो जैसे ही हम इस पे जाएंगे तो देखो, चूंकि ये इलिप्स टूल से बना हुआ है, कोशिश इससे मत करना. किसी दिन बनाओगे सर मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि इससे बना दिया. इससे बनाओगे तो नहीं आएगा वो पेन उस पे पाथ. पाथ हमेशा इलिप्स टूल पे ही आएगा, राइट? तो यहाँ पे गए और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा. लेट्स से इफ आई राइट so this lorem ipsum is coming right now. तो इसके ऊपर हम लोगों ने लिखा the design company और इसको हमने थोड़ा सा साइज इसका बढ़ा दिया. यदि आप कीबोर्ड से साइज बढ़ाना चाहते हो तो आप कंट्रोल और शिफ्ट दोनों प्रेस करके ग्रेटर देन वाला दबाओगे तो इससे भी साइज बढ़ सकता है, राइट? बाकी ऐसी कोई जरूरत नहीं है, आप जाओ ऊपर बिंदास टेक्स्ट टूल से भी साइज बढ़ा सकते हो, राइट? सो यहाँ पे गए हमने जहाँ डिजाइन कंपनी लिख लिया और यहाँ पे जाके इस डिजाइन कंपनी को हम ऊपर की साइड यहाँ पे सेट करते हैं, है ना? अच्छा, ये थोड़ा छोटा सा लग रहा है इसलिए इसका कंपनी पूरा ही लिख देता हूँ मैं. तो कंपनी, हाँ, तो so this is what you have, let's say आपने लिखा, इसको इंडिया भी लिख देते हैं, चलो. तो थोड़ा प्रोपोर्शन मैनेज करने के लिए तो डिजाइन कंपनी इंडिया ये लिख दिया यहाँ पे. अब मैं चाहता हूँ एक चीज नीचे भी लिखी जाए. होता है ना, लोगो बनते हैं तो नीचे की साइड भी होता है ना, मोनोग्राम टाइप. वेरी गुड. तो यहाँ से मैंने क्या किया, एक इलिप्स पे एक तो ये बना दिया, है ना? और अब मेरे को एक और लिखना है, द डिजाइन कंपनी. तो मैं एक काम करता हूँ, तो मैं एक और काम करता हूँ कि मैं एक और इलिप्स बना देता हूँ क्योंकि इसने तो इसको संभाल ही रखा है. तो जो कॉपी है ना, कॉपी का नाम रख दूंगा सेकंड पाथ. मान लो अपनी जानकारी के हम कंफ्यूज ना हो जाए एक से कलर देख के, राइट? तो इसका नाम मैंने सेकंड पाथ रख दिया और अब मैं सेकंड पाथ को सिलेक्ट किया और यहाँ पे जाके मैंने इस पे गया. एक देखो फिर से आ गया ना इसके ऊपर ये, और यहाँ पे आ गया, राइट? और इसके ऊपर मैंने कुछ और लिख दिया. मैंने लिख दिया मान लो न्यू दिल्ली, राइट? ठीक है ना? सो जब हमने यहाँ पे लिखा न्यू दिल्ली तो अब बंदा इसको उल्टा होके तो नहीं पढ़ेगा, दिमाग सर घुमाना पड़ेगा इसके लिए, तो है ना? सीधा सीधा लिखा होना चाहिए. ये ऐसा ना लिखा हो के ऐसा लिखा होना चाहिए कि नहीं? अलाइन नहीं है ना सही से. तो इसको हम यहाँ पे गए अब ये, और इसको अंदर घुसा देंगे. कैसे? ये अंदर आ गया. वेरी गुड. लेकिन इसमें एक समस्या क्या है? समस्या ये है कि ये बाहर है और ये अंदर है, तो अलाइनमेंट सेट नहीं हो रहा ना. तो अपन को क्या चाहिए, अब इसको पहले तो बाहर निकालना है. रहे तो ओरिएंटेशन तो यही रहे जैसी है, लेकिन आए पाथ के ऊपर ही, क्योंकि ये पाथ के ऊपर भी आ रहा है तो ये भी पाथ के ऊपर आएगा तभी तो ठीक लगेगा. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको तो सिलेक्ट करो, यहाँ से टेक्स्ट टूल पे जाके इसको सिलेक्ट करो और सिलेक्ट करने के बाद हमने आपसे बात की थी टेक्स्ट टूल के पैलेट के लिए. तो टेक्स्ट पैलेट कहाँ पे जाती है? कैरेक्टर पैलेट. सो दिस इज अ कैरेक्टर पैलेट, राइट? दिस इज अ कैरेक्टर पैलेट, राइट? सो द कैरेक्टर पैलेट हैज गॉट वन थिंग कॉल्ड बेसलाइन शिफ्ट. क्या कहलाती है? बेसलाइन. अभी इसकी बेसलाइन क्या है? ये है, ये इस पे टिका हुआ है. तो हम इस पे ना टिका के इसको इसके टॉप पे टिका देते हैं. तो इसका बेसलाइन शिफ्ट थोड़ा सा ये अंदर है और ये बाहर है. देखो, ये आया, ये आया, ये. मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने टूल से ड्रैग कर रहा हूं, ठीक है ना? मैं सॉरी टूल से कह रहा हूं, माउस से ड्रैग कर रहा हूं. देखो इसको बेस लाइन पे चिपका दिया ना, बिल्कुल लाके. और बेस लाइन पे जब चिपका दूंगा और उसके बाद फिर से अपने स्कूल पे चला जाऊंगा और इससे ओरिएंटेशन को, अरे भाई बाहर लाना है, बाहर लाना है. कंट्रोल जेड किया और why is it behaving like this? So
सो एनीवेज ये यहाँ पे हमारी एक तरह से समस्या सॉल्व हुई और हम सेकंड पाथ पे जाएं और सेकंड पाथ पे जाने के बाद इस पे क्लिक करें और सेकंड पाथ पे नहीं, हम न्यू दिल्ली पे क्लिक जाएं और न्यू दिल्ली पे जाने के बाद थोड़ा सा it is misbehaving, why is it doing that? तो मैं इसको अंदर की साइड, सॉरी, इसका ओरिएंटेशन चेंज करके मैंने बताया था आपको, ये इसका ओरिएंटेशन है। अच्छा, टेक्स्ट टूल पे जाएंगे और टेक्स्ट टूल पे जाने के बाद आप जब टेक्स्ट पे जाओगे, कहाँ पे जाएंगे? टाइप पे। इस पे टाइप पे, और टाइप पे जाने के बाद ओरिएंटेशंस भी आएंगी। ओपन टाइप ओरिएंटेशन पैनल, नहीं नहीं नहीं, कहाँ पे जाएंगे हम? फॉन्ट प्रीव्यू वगैरह आई थिंक सब ठीक ही है, आई थिंक सो, तो कोई दिक्कत नहीं है। द ओनली प्रॉब्लम इसको सेंटर में लाना है मेरे को, किसके? सर्कल के, राइट? तो कंट्रोल टी हमने यहाँ पे प्रेस किया और कंट्रोल आर से रूलर भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसको प्रेस कर रखा है। तो मैं चाहता हूँ कि अब ये जो है ये इधर पे आ जाए। सो यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे चले गए और यहाँ पे जाने के बाद आपको जो है I'll go to this tool and creating this. Why is it coming like this? प्रॉब्लम क्यों कर रहा है कुछ? पहले उधर पे भी दिक्कत कर रहा था। सो हम इसका साइज को, ये भी ऑल्ट और इसको बोलते हैं ट्रैकिंग को बढ़ाना और ट्रैकिंग को कम करना। तो आप ट्रैकिंग मोड के ऊपर भी अपना चल सकते हो। सो यहाँ पे स्टिल आई एम स्ट्रगलिंग टू सेट दिस अप। ऐसा होना नहीं चाहिए था। मेरे को लग रहा है फोटोशॉप को दोबारा से ओपन करके ऑफ करके करूंगा तो शायद वो हो जाएगा। आप लोगों को ऐसी प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, आई होप सो। ऐसा क्यों आ रहा है? It should be done. अच्छा, ये अच्छा बेसलाइन शिफ्ट है ना, तो उसकी वजह से होता है। देखिए अब मैंने थोड़ा सा सही किया ना, घुमा फिरा के, तो वो हो गया। क्योंकि बेसलाइन शिफ्ट पे प्रॉब्लम क्या हुई कि वो अंदर से उसको सोच रहा था लेकिन वो था बाहर। तो अब देखो, अब यहाँ पे मैंने इसको ठीक कर दिया कि नहीं? हाँ, अब इसको मैंने ठीक कर दिया। अब देखो ये बिल्कुल सेंटर पे आएगा। आप बोलोगे सर इसको, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये तो शेप बस अपनी कन्वीनियंस के लिए थी। अच्छा, अब इसका और काम कर लेते हैं। एक का कलर बदल देते हैं, लेट्स से, हैं? एक का कलर बदल देते हैं। दोनों एक से दिख रहे हैं ना, तो एक को हमने ये कर दिया, लेट्स से। इसको कंट्रोल टी कर लो और कंट्रोल टी करके ऑल्ट के थ्रू, किसके थ्रू? सेंटर से होगा ना बड़ा, ये हो गया ना बड़ा, ठीक है ना? और इसको डबल क्लिक कर दिया। अब ये छोटे वाला है ना, इसको ऊपर ले आओ। छोटा वाला पीछे है ना, छोटा वाला ऊपर आते ही अलग दिखने लग जाएगा। आ गया। इसको भी कंट्रोल टी कर लो और इसको भी ऑल्ट से बराबर बराबर है, ठीक है जी। अब इस वाले को तो वाइट ही कर दो। इस क्या कर दो, और इसमें यदि आपको इसको ब्लैक कर दें, इसको ब्लैक कर देते हैं और इसको व्हाइट कर देते हैं। किसको? टेक्स्ट को। टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करो, व्हाइट कर दो और इसके ऊपर भी व्हाइट कर दो। बन गया ना? अच्छा सा लोगो लग रहा है कि नहीं? और इसके बीच में आपको पिक्चर डाल देना। समझ में आई बात? तो Yes, sir. इससे क्या रहेगा कि आप, हालांकि ये इलस्ट्रेटर का काम है, ये कोई आइडियली फोटोशॉप का काम नहीं है, कोई बात नहीं, हम फोटोशॉप में कर देंगे, क्या दिक्कत है? तो बट इससे क्या होएगा, आपकी टेक्स्ट पे और पाथ पे कमांड बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस आएगा, है ना? मैं जितने एफर्टलेसली कर पा रहा हूँ। तो हम इस पूरी चीज को एक बारी फिर से करते हैं और मेरे ख्याल से मजा तब है जब 1 मिनट में मैं सारा कर दूं। ऑब्जर्व करना इस बारी। अब यार 1 सेकंड रुको। तो इस तरह से आप चीजों को बना सकते हैं और that is what you probably can do. So I'll just try to repeat it all over again. आप लोगों को कोई समस्या हो तो मेरे को बीच में रोकना
तो मैं एक नया डॉक्यूमेंट बनाया यहाँ पे, एंड क्विकली आई डू दैट। सो यहाँ पे एक नया डॉक्यूमेंट बनाया है मैंने, एक छोटा सा सर्कल बनाया। सर्कल हमेशा शेप पे बन रहा है, बनन दो शेप पे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो इसको हमने यहाँ पे बना लिया। और ये व्हाइट कलर का क्यों आ रहा है, क्योंकि ये फोरग्राउंड कलर व्हाइट है। यदि आप फोरग्राउंड कलर व्हाइट ना होता तो कुछ और होता, तो इस पे ले लेते। तो यहाँ पे तो एक शेप बनाया, और शेप बनाने के बाद टेक्स्ट टूल पे गए। टेक्स्ट टूल पे जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे लिखने के बाद आप कोई भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो व्हाट वे डिजाइन कंपनी, या कुछ भी लिख दिया आपने, मैंने व्हाट वे डिजाइन लिख दिया। तो इसका क्या मतलब होता मुझे नहीं पता। यहाँ पे ऐसे लिख दे, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, जल्दी जल्दी काम करने में यही दिक्कत होती है, टाइम ज़्यादा लगता है। तो मैंने व्हाट ड्रॉप स्टूडियो, और यहाँ पे जाने के बाद ये ऐसा लिखा हुआ है, और सिंपल क्या करना है, इस पे जाना है, और इससे जाके इसको बाहर की साइड, ये पता सेटिंग क्यों हिल गई, ये सेटिंग हिल गई है क्योंकि उसमें वो डिफॉल्ट सेटिंग बन गई टेक्स्ट पैलेट में, बेसलाइन शिफ्ट बदल गया ना। तो इसको बेसलाइन शिफ्ट देखो बाय डिफॉल्ट 43 हो गया। अब जब भी मैं कुछ लिखूंगा ना तो बेसलाइन शिफ्ट बदल के आएगा। अच्छा, तो चलो ये प्रॉब्लम आई, तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आना चाहिए, बार बार नहीं तो ये परेशान करेगा मेरे को। तो इसको डिफॉल्ट कर लेना, क्या कर लेना, रीसेट टेक्स्ट। क्या यहाँ पे कमांड होती है रीसेट कैरेक्टर, तो रीसेट कैरेक्टर करते ही ये ठीक हो जाएगा। देखो अब अपने आप ऊपर पहुंच गया, लेकिन छोटा भी हो गया। रीसेट कैरेक्टर होता है 12 पॉइंट का टाइप और एरियल का फॉन्ट, इफ आई एम नॉट मिरियट का फॉन्ट। तो यहाँ पे आपने इसको ले लिया, और यहाँ से आपको जैसे भी चाहिए था, मान लो बस कर दिया मैंने। तो और यहाँ पे लेके और इसको साइज बढ़ा दिया 46 व्हाटएवर। So you can do anything and then this allows you कि आप इसको बाहर की साइड या अंदर की साइड रखो। अच्छा, ये तो सबको पता चल गया था। दूसरी चीज का शायद कंफ्यूजन हुआ होगा। तो मैंने एक एलिप्स लिया था और एक एलिप्स को कॉपी ली थी, और इसका नाम मैं मान लो 2 रख देता हूँ। और 2 पे रखने के बाद टेक्स्ट टूल को लूंगा और 2 के ऊपर प्रेस करूंगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा टेक्स्ट का जैसे आइकन जो है ये पाथ पे आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया न्यूयॉर्क यूएसए, और यहाँ पे जाके हमने इसको यहाँ पे लिखा। अब आप चाहते हो इसको अंदर की साइड से सेट करना है, तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पे गए और यहाँ से जाके अंदर की साइड डाल दिया। बस अंदर की साइड जाने के बाद अब सेट कर दो, और बस यहाँ पे बेसलाइन शिफ्ट में जाना है और इसको नेगेटिव जोन में लेके जाना है, ठीक है, नेगेटिव जोन में। लेकिन नेगेटिव जोन कितना होगा वो आप अपनी हिसाब से देख लेना। It should be coming right at the edges. Yes, that's done. तो जैसे ये हो गया, और बस हो गया काम। बाकी तो अब क्या है, बाहर छोटा अंदर बाहर करने वाला काम था, वो कर लो। इसको ये वाला कलर डाल दो, कोई भी कलर डाल दो। ये लो, ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, तो नीचे वाले कोई बड़ा कर दो, और ऑल्ट के साथ ये यहाँ ले आए, राइट। और इसको टेक्स्ट का कलर वाइट वाइट कर दो दोनों का। ये लो, एक ही बार में वाइट करना चाहते हो तो दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे वाइट प्रेस कर दो, ये हो गया। आपके बड़ा छोटा कितना चाहिए था वो आपके ऊपर है। इसको अंदर वाले को थोड़ा सा कम, बिल्कुल चिपका चिपका अच्छा नहीं लगता, तो इसको ऑल्ट के साथ ये ऐसे क्या है, ठीक है ना, हो गया क्या नहीं। और इसको वाइट कर दो भाई। तो एनीवेज आई होप आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा, नहीं तो थोड़ा सा खुद को भी मत्थापच्ची करनी पड़ेगी, आसानी से नहीं होगा तो, लेकिन बहुत डूएबल है। अच्छा, एक और चीज, तो ये तो हो गई हमारी पेन टूल की बात। तो पेन टूल में मतलब किसी भी चीज के ऊपर इतनी सारी चीजें हमने ये बताई। कस्टम शेप टूल, आपका कोई मन करा तो आपने कोई भी कस्टम शेप उठा ली, ये लो, यही आ गया भाई सब। शेर भाई सब है, कौन है, हाँ, तो इनके ऊपर टेक्स्ट लिखना है तो इनके ऊपर टेक्स्ट लिख मारो, दो, ये आ जाएगा कि नहीं। हो जाओ शुरू। अब देखो इसमें अंदर की साइड आ रहा है, क्यों क्यों ये, हाँ, तो अब आपके ऊपर है। आप इसमें 10 मैं 12 पॉइंट का टेक्स्ट साइज करूंगा तो देखो ऊपर ऊपर आ गया कि नहीं। तो आप अंदर रखना चाहते हो बाहर रखना चाहते हो तो आपके ऊपर है। तो आप इसको जैसे मर्जी ऊपर प्लेस कर दो। व्हाइट कलर का है इसलिए व्हाइट कलर पे व्हाइट कलर दिख नहीं रहा।
तो आप किसी भी शेप के ऊपर प्रेस कर सकते हो. तो यू हैव टू यूज द राइट objects to express your feelings, right? So that could be anything. You make a heart, और heart के अंदर text लिख दो. You can write poetry, you can write love poems, या कुछ भी आप लिख. You can actually क्या कर सकते हो बेसिकली आप इसको बोलते हैं डिजाइन सेमेंटिक्स. तो मतलब अपनी डिजाइन और उनको जोड़ सकते हैं. एनीवेज, coming back to path, we'll do one more stuff that's very important to understand. I'll make a path, right? ये path बनाया, right? So the path के ऊपर अभी एक चीज हम लोगों ने सीखी थोड़ी देर पहले, टेक्स्ट लिखना. क्या सीखा अभी टेक्स्ट को लिखना. क्या हम टेक्स्ट के अलावा भी कुछ और कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं जी. ये वर्क पाथ है यहाँ पे. तो यहाँ पे वर्क पाथ गया. अभी तक हम लोगों ने शायद ब्रश का जिक्र नहीं किया. अब हम एक दिन क्लास में जिक्र करेंगे ब्रश का. तो दिस इज कॉल्ड ब्रश टूल. दिस इज अ ब्रश एंड दे आर लाइक व्हाट इज ब्रश. दिस इज हाउ द ब्रश वर्क्स. द वर्क्स जो भी कलर होता है फोरग्राउंड में उसके ऊपर ब्रश काम करता है. एंड देन देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ ब्रशेस. वो ऊपर जाओगे तो यहाँ पे दिख रहे हैं तरह तरह के ब्रशेस की आपको पूरी की पूरी कैटेगरी दिखेगी. देखो इधर पे जैसे क्लिक किया, ये ब्रश का बॉक्स है. पहले हमारे पास होते थे ना ड्राइंग बॉक्स में खूब तरह तरह के ब्रश रखते थे. जो डिजाइनर्स होते हैं, फाइन आर्टिस्ट होते हैं, उन लोग के पास बहुत ही सारे ब्रश होते हैं. हमें तो लगता है वो एक ही होता है छोटा सा, बस उसी से हम ऐसे कर लेते हैं. बट दी ब्रशेस के तो बहुत सारे प्रकार होते हैं ना. तो देखो कितने सारे. फोटोशॉप में आने के बाद बचपन में भले ही वो हमारी थोड़ी एस्पिरेशन नहीं कि हमारे मम्मी पापा ने इतने, एक तो हम आर्टिस्ट ऐसे थे इसलिए किसी ने लेके नहीं दी है, दूसरा ये कि वो शौक ही रह गया. लेकिन अभी क्या है कि फोटोशॉप में आपको इतने सारे ब्रश मिल रहे हैं. देखो कितने सारे ब्रश मिल रहे हैं. जो मर्जी देखो, जो मर्जी ब्रश उठाओ, इस वाले को उठाओ, इससे देखो ड्राइंग बना दी है. कोई दूसरे मिल रहे हैं तो इससे मिला, इससे बना लो. तो देखो कितने सारे ब्रश मिल रहे हैं. तो कितने तरह तरह के ब्रशेस हैं. देयर लाइक मेनी. ओह वाओ. सो ये कितने सारे ब्रश हैं. तो इन ब्रश को जब हम चलाते हैं ना, एक तो पहले से ही मेरे ऐसे बंदे को तो पहले ही बहुत ज्यादा मतलब ड्राइंग, वो तो फोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर का भला हो कि हम इनके जमाने में डिजाइनर बन गए. नहीं तो हाथ से बनाना होता है तो हम कभी बन ही नहीं पाते. But anyways, design is not limited to the artistic nature. The design is something else, art is something else. Okay, so I might not have become an artist, but one can always become or aspire to become a designer. The designer means you have to bring the communication also along. तो मैं शायद उस साइड से था इसलिए मैं उसका इस्तेमाल कर पाया, right? So अब क्या है कि अब हम इस शेप या इस पेन टूल से रिलेट करने की कोशिश करते हैं ब्रश को. ठीक है ना. तो लेट्स डू समथिंग, कुछ बनाते हैं. तो क्या करें. ये बनाया पेन टूल, और अभी मैंने जो बनाया ये ब्रश बनाया, ये बहुत बड़ा सा है ना. इसको छोटा कर दें. छोटा कर दिया भाई है. और छोटा करने के बाद मैं चलता हूँ, मैं ऐसे चला रहा हूँ. तो देखो ये हाथ मेरा ही नहीं चल रहा है. एक तो माउस है. अब लोग जो आर्टिस्ट भी होते हैं वो बेचारा आर्टिस्ट तो पेन से काम करता है, पेपर पे काम करता है, वही माउस से थोड़ा बनाता है. तो अब हम चाहते हैं कि मेरे इस पेन पे ये ब्रश चले. किस पे चले. इस पेन पे या पाथ पे रादर. तो पाथ पे चलाना है ब्रश को. तो ब्रश मैंने अभी बना लिया, छोटा मोटा सब सेट करके रख लिया. आई विल गो टू द पाथ. दिस इज अ पाथ पैलेट, राइट. This is right in front of you. And then you need to say, you have to go to the pop-up menu of this and say stroke path. You have to say what? And you need to stroke the path. And you want to stroke the path with what? The pencil? No. I want to do it with brush. Where is the brush? This is the brush. And then we'll say, okay. सबसे आसान काम. Okay. तो okay कर देते हैं. चल गया ना इसके ऊपर. ये देखो ब्रश चल गया और देखो कितना बढ़िया से लग रहा है. अब थोड़ा सा इस सिचुएशन, हालांकि मैंने आपको अभी तक ब्रश सिखाया नहीं है. ब्रश में आपको पूरी एक क्लास भी कम पड़ जाएगी जब मैं आपको ब्रश सिखाऊंगा. लेकिन एनीवेज हम जब भी कुछ काम करें किस पे करें. न्यू लेयर पे. तो न्यू लेयर बनाई और यहाँ ब्रश बनाया था जी. तो ब्रश पे फिर से आते हैं और ऐसा था कुछ. इसको छोटा कर लेते हैं क्योंकि पेन टूल के ऊपर ये ब्रश ये बहुत ज्यादा बड़ा रहा है. एक बारी काम करते हैं, इस बारी हम सर्कल पे चलाते हैं. किस पे. सर्कल पे. तो एलिप्स बना लेते हैं. एलिप्स किससे बनाना है. पाथ से. किससे. पाथ से. वेरी गुड.
सो विल क्रिएट, इसको हटा देते हैं और एक नया इलिप्स बनाते हैं और शेप की जगह पाथ. So we'll do this thing. All right, this looks good. And then we'll go to the brush and we'll set up the brush on the one that we want to work it upon. So इससे हमने यहाँ से लिया, हम इसको देखें कैसा लग रहा है. ओ वाह, पत्तियां सी हैं इसमें तो इस ब्रश को छोटा किया, लेकिन ये बहुत पास पास में इसके ब्रिसल्स आ रहे हैं ना, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहा है. तो यहाँ पे स्पेसिंग आ रही है ना, तो स्पेसिंग को फैला देते हैं. ठीक है ना, अब नहीं चढ़ेगा, एक ओवरलैप नहीं हो रहा ना, तो ये हो गया. इसको थोड़ा छोटा भी कर लेते हैं. हाँ, और यहाँ से ये इसको ये क्या है छोटा, ठीक है. ठीक है जी. सो दिस लुक्स गुड. ओके, so the next step is what? The next step is to run the brush. I hope I have already made a layer. Yes, I have already made the layer, right? So इसको तो कंट्रोल जेड कर दो और नई लेयर में आने के बाद किस पे जाना है? पाथ पे. इस पे पाथ यहाँ पड़ा हुआ है, बहुत सिंपल है भाई बात. और इसको जाके क्या बोल देना है? बस पाथ एक्टिव है ना, ये पाथ एक्टिव कर लेते हैं. स्ट्रोक पाथ. अरे स्ट्रोक पाथ क्यों नहीं आ रहा? सर वो लेयर में भी आई ऑफ है ना. ओ हाँ हाँ हाँ, थैंक यू वेरी मच. तो यहाँ से बिल्कुल सही पहचाना आपने. तो यहाँ पे जाएंगे और स्ट्रोक पाथ बोलेंगे और स्ट्रोक पाथ करने के बाद ओके करेंगे. वाह, ये तो रेत बन गई ना. तो कितने बढ़िया से इसका काम हो गया कि नहीं? एंड सो दिस कुड बी इंटरेस्टिंग. और कलर वलर आप उसी हिसाब से, अब मैंने मान लो एक और पाथ ले लेता हूँ यहाँ पे, और इस पाथ को भी हम एक और पाथ रख लेते हैं यहाँ पे, राइट. अब ये छोटा पाथ है और तो इस पे क्या करें? इस पे भी ब्रश चलाते हैं. इस पे क्या काम करते हैं? इस बार कुछ और ब्रश बदल लेते हैं लेट से. तो हम ब्रश टूल पे गए, फिर से इसकी जगह पे हमने कोई और वाला ब्रश उठा लिया. लेट से हमने उठा लिया यहाँ पे जाके ये कौन सा ब्रश है? ऐसा सा कुछ है. इसकी स्पेसिंग बढ़ा के देखें कैसा है. ये ऐसा सा है, आई डोंट नो ये क्या चीज है. तो इसको लेते हैं, तो यहाँ से भी ले सकते हैं. ये क्या है भाई? अच्छा, इसकी भी स्पेसिंग बढ़ा के देखें. ओके, ऐसा भी कुछ है यहाँ पे. और दिस इज अनदर ब्रश. ओके, दिस लुक्स गुड. तो इसकी हम स्पेसिंग तो ऑलरेडी कम ज़्यादा थोड़ी सी ऐसे कर ली और ब्रश को छोटा कर लेते हैं. ये छोटा कर दिया. ये छोटा करने के बाद इसमें जाके स्ट्रोक करना है पाथ को, तो स्ट्रोक पाथ बोल देना है और ओके बोल देना है. सो देख रहे हैं ना आप कि तरह तरह की हम शेप्स वगैरह डेवलप कर सकते हैं कि नहीं. और यदि तुमको मान लो मैं रोज का वो बनाना चाहता हूँ ब्रश, तो क्या करूंगा? मैं रोज को ब्रश बनाना चाहता हूँ. अब ब्रश तो मतलब कुछ भी, किसी की जो मर्जी, मेरी मर्जी है मान लो कि मैं किसी रोज को ब्रश बनाऊं. या फिर एक काम और भी कर सकते हो इंटरेस्टिंग. अच्छा, मैं ब्रश पे नहीं जाता एक्चुअली, ब्रश पे जाना ठीक नहीं रहेगा, वो कहानी की डायरेक्शन बदल जाएगी. तो हम पाथ पे ही रहते हैं, ठीक है ना. सो आप उसके ऊपर ये चीज कर सकते हो. लेकिन हाँ ये है कि इंटरनेट से आप बहुत ज्यादा टाइप के, जैसे फॉर एग्जांपल आई वांटेड टू हैव अ फर ब्रश, तो आई कैन जस्ट आस्क द फर ब्रश फोटोशॉप. ओके, and then I go to the fur brush of the Photoshop. I open this thing and wow, this looks good. I think free download. Wow, क्या बात है. तो मैंने यहाँ पे इसको लिखा. कुछ और नई चीज बताता हूँ अब आपको मैं. हो गई डाउनलोड ऑटोमेटिकली. कर दे भाई, कोई नहीं. नहीं हुआ ना. पर ब्रश डाउनलोड आई थिंक यही है ना. अरे ओहो, हाँ आ गया. थैंक गॉड. तो जो ब्रश होता है उसकी जो एक्सटेंशन होती है, कॉल्ड ABR. ABR मतलब अडोबे ब्रश, है ना. अडोबे ब्रश, दैट इज कॉल्ड ABR. तो हम इसको उठा के यहाँ डेस्कटॉप पे पटक देते हैं
और फिर हम फोटोशॉप में गए और हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, हमने यहाँ पे पहले तो हम इसको लोड कर लेते हैं ब्रश को। सो यहाँ पे जाएंगे, ब्रश में ही है ना अभी, ये ब्रश है और यहाँ पे जाने के बाद क्या करना है, कहाँ पे जाने के बाद क्या करना है, यहाँ पे जाने के बाद we need to have the brush, so we'll go to the import brush, right? कहाँ से करना है import, brush palette में जाने के बाद ये gear icon आएगा, इस gear icon पे क्लिक करते हुए आपको क्या करना है, import brush. So once you do that, you go to the desktop and you'll find that your brush, the fur brush is coming right there. So I just bring in this brush. तो सबसे आखिरी जो brush होगा वो वही होगा जो आपने अभी import किया है। तो इसमें इतनी बड़ी कैटेगरी है, वाओ बहुत सारी है। तो मैं क्या करता हूँ अब कि इस पे लिख देता हूँ, लेट्स से मैं लिखता हूँ, तो मैंने लिख दिया फर। तो ये जो टेक्स्ट टूल है सर, ये तो पेन टूल नहीं है, पाथ नहीं है, ये तो टेक्स्ट है। तो हमने लिखा यहाँ पे फर। So now what are we supposed to be doing? हम क्या करें, हम करते हैं इस टेक्स्ट के ऊपर ब्रश चलाएंगे, हाँ? So इस टेक्स्ट को क्या करना पड़ेगा, पाथ में कन्वर्ट, किसमें, पाथ में कन्वर्ट। So this looks like this when it is nothing like it, like यहाँ पे दिखता है, ये फर दिखाई दे रहा है, टेक्स्ट है ये। So go to that edit and say okay, you have to say what? You have to say the type. You go to the type and say create work path. क्या? Work path. So the moment you say create work path, path में देखो ये टेक्स्ट के चारों तरफ आउटलाइन बन गई कि नहीं? टेक्स्ट जैसा टूल था वो वही है अभी भी, ये अभी भी टेक्स्ट ही है, लेकिन पाथ पैलेट में जाके क्या बन गई, आउटलाइन। किसकी आउटलाइन बनी, टेक्स्ट जो अभी अभी हमने लिखा है उसके चारों तरफ पड़ गई क्या नहीं, हाँ? और यहाँ से जाएंगे और पहले ब्रश सेट कर लेते हैं, हाँ ब्रश सेट करें, तो बी फॉर ब्रश, और ब्रश सेट में कहाँ गए ब्रश, ये रहा ब्रश। और यहाँ पे जाने के बाद, यहाँ पे जाने के बाद हमें अपनी ब्रश कैटेगरी डिफाइन करनी है। अच्छा यहाँ पे तो ये आ रहे हैं, तो ब्रशेस में यहाँ पे जाके ये फर ब्रश आ जाएगा सबसे नीचे, राइट? सो we'll take this brush, let's assume I am taking this brush and I have to run this because ये टेक्स्ट लेयर है इसलिए इस पे चलेगा नहीं, इसलिए इस पे नई लेयर बनानी पड़ेगी। और इस पे चला के आप देखो, ओह कूल, मस्त ब्रश है यार ये तो यहाँ पे इसको भी एक और फर आ रहा है, ये तीसरी कैटेगरी है फर की, राइट? तो मैं तीसरी कैटेगरी को रख लेता हूँ और इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बड़ा बड़ा सा दिख रहा है तो यहाँ इसको छोटा कर लिया, देखो तो ये छोटा कर लिया। और अब क्या करना है, वर्क पाथ पे जाना है और क्या बोल देना है, स्ट्रोक पाथ, से ब्रश, ओके, ओह कूल। और इस टेक्स्ट को ऑफ कर लो, इसको कर लो ऑफ, टेक्स्ट को देख रहे हो, कि नहीं? सो दिस आर एक्चुअली और ये बिल्कुल फ्री है, एजेस भी नहीं है और सॉफ्टनेस भी दिखाई दे रही है। और यदि मैं एक काम भी करते हैं और फन करते हैं, तो ये फर है ना, फर, तो हम इंटरनेट पे जाके कोई फर की पिक्चर भी उठा लेते हैं, काम करते हैं, फर इमेजेस में गए, नहीं मेरे को फर चाहिए ना कि फर ब्रश, तो आई जस्ट गो एंड फाइंड सम फर, ओह very soft, and find something, oh this looks okay, so you can take this, copy this image and bring it to Photoshop and यहाँ पे पेस्ट कर दिया इस फर को, हैं? और इस फर को इसके अंदर घुसाने के लिए क्या करेंगे, Alt Control G, चली गई ना, इसके अंदर चली जाएगी, Alt Control G, तो ये तो फर आ गई चारों तरफ। और अब ये जो फर है, ये जो ऊपर वाला है, इसका कलर भी यदि ऐसा कर दें तो मजा लगेगा ना। तो what you can do actually, you can take this color, right? कोई मेजर कलर ले लो, यहाँ पे देखते रहो कलर कैसा आ रहा है, लाइट डार्क आप करते रहना। और इधर से इस पे लेयर 1 पे शॉर्ट कमांड Alt Shift Backspace, राइट?
सी। ओ सो थोड़ा सा देख रहे हैं ना, तो उसी से मिलता जुलता ये आप चला सकते हो। यदि सेम का सेम मिल जाता तो नथिंग लाइक इट। तो सो यू कैन जस्ट डू, आपने मैंने उसका कलर भी चेंज करके देख लिया हल्का फुल्का। और या तो ऐसे रखना है तो ऐसे कर लो, नहीं तो ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है ना। So you can just do. So what we could able to end up doing, that we learned today how to write on path, how to brush path, and uh, how to convert text into path, and a couple of more things, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें पेन पाथ टूल से आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। तो पाथ आपको क्रिएट करने पे भी मिलता है, और पाथ आपको एलिप्स या शेप टूल से भी मिलता है। और then you can even make your own path, and then you can even convert the text into a path. And is it okay कि हम यदि कोई भी सिलेक्शन भी हो, मान लो कोई भी सिलेक्शन हो, मान लो मैंने ये कोई सिलेक्शन बनाई, यहाँ से ये लासो से मैंने कुछ सिलेक्शन बनाई, इवन दिस सिलेक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ पाथ। सो हम क्या बोलेंगे, पाथ टूल में जाके मेक वर्क पाथ, और मेक वर्क पाथ करेंगे तो ये सिलेक्शन भी पाथ में कन्वर्ट की जा सकती है, राइट। सो यू कैन डू अ लॉट ऑफ वेज, आप जैसे चाहें आप उसको कर सकते हो। तो एक इस चीज का आप ध्यान रख सकते हो। आई होप सब लोगों को समझ में आया। Yes, sir. तो आप इसको आप ट्राई करते रहना का है। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, और इससे हम ये पेन काफी यूजफुल हो जाता है उस सेंस में। और सो दिस इज व्हाट वी हैव डन, एंड we'll figure out anything which is left behind। यहाँ तक सिलेक्शन टूल्स की बात है, तो सिलेक्शन टूल में एक तो नई कैटेगरी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद आज हम सिलेक्शन टूल्स पूरे खत्म कर देंगे। दैट्स कॉल्ड क्रॉप टूल एंड पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। हालांकि क्रॉप टूल इज नथिंग, आजकल तो स्क्रीनशॉट भी लेते हो तो भी आप क्रॉप करते हो। सो क्रॉप इज एनीथिंग, मोबाइल में तो आप सुबह शाम में से शाम तक 10 बार ही कर ही लेते हो। लेकिन लेट्स अज्यूम इन अ फोटोशॉप पर्सपेक्टिव में इस चीज का क्या मायने हैं, तो थोड़ा उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स से ओपन अप एन इमेज, ओपन अप बिग इमेज। मायने कर लेते हैं कि just open up some image, and I'll do what I'll open up a group image, maybe not portrait image, portrait image. All right, not a problem. So let's open up an image which has additional areas, maybe like this. So I open up this, copy this image, and let's say Control N and enter this, Control paste. And then you just want this crop tool to work, and very simple to work. Crop tool आप ओके करिए, और जितना भी आप इसको कर देंगे उतना ये आपकी चीज को क्रॉप कर देगा। ये तो बहुत सिंपल सी चीज होगी, राइट, इसमें तो कोई समस्या है ही नहीं। अब चलते हैं कुछ और नया समझने के लिए। तो मान लीजिए आपको कोई लेआउट में ये पिक्चर कैसी है, ये पिक्चर वो है, लैंडस्केप है, चौड़ी है ना, थोड़ी लैंडस्केप टाइप है। बट मेरे को जहां डिजाइन में लगानी है वो क्या है, पोर्ट्रेट है जगह। उसमें मैं मतलब एक डिजाइन बना रहा हूँ, और उस डिजाइन में यहाँ मेरे को पिक्चर बनानी है, वो ये मेरा डिजाइन है, लेट्स से, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया इन्वेस्टर्स समिट 2022। सो यहाँ पे मैंने इसको बड़ा कर दिया, और डी प्रेस करके इसमें ब्लैक कलर डाल दिया, इन्वेस्टर्स समिट 2022। ये मान लो मेरा एक ब्रोशर का डिजाइन है, या पोस्टर है, ऐसे कर दिया। और ऐसा करने के बाद इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जाने के बाद हम एक नई लेयर बना लेते हैं, और ये कुछ पुटअप कर लेते हैं, एक अच्छा सा कॉर्पोरेट ब्लू कलर उठा लेते हैं, इसको डार्क वाला उठाएंगे, और यहाँ पे इस कलर से इसको डाल दिया, इसको ऊपर कर दिया, और इसको वाइट कर दिया। और यहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ पे कुछ इसी को उठा के इससे ब्लू कलर ले लिया, और
स्पीकर्स लिस्ट, ठीक है। स्पीकर्स लिस्ट हमने यहाँ पे छोटा कर दिया और ये हम यहाँ पे रख दिया। और अब मेरे को स्पीकर्स की पिक्चर्स चाहिए, कहाँ पे चाहिए हैं, यहाँ पे एक पिक्चर हमने ऐसे बना ली। कैसे बना ली, ये रेक्टेंगल टूल लिया और ये नहीं पाथ पे चल रहा है तो इसको शेप पे चला देते हैं। तो यहाँ से शेप कन्वर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे ये ले ली और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल टी करके हम चाहें तो इसको स्क्यू भी कर, डिस्टॉर्ट करके स्क्यू कर लेते हैं ऐसे। तो स्क्यू में ऐसे हो जाए ना, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस कर दिया और ये हमारे स्पीकर्स की लिस्ट आनी है। तो हम स्पीकर्स लिस्ट यहाँ से सेटअप कर रहे हैं। एक स्पीकर नंबर 2, इसका कलर थोड़ा सा चेंज करना है तो कर लेना, नहीं तो इसके बीच में गैप डाल देते हैं। चलो, और ये दोनों को एक साथ ले लेते हैं और ताकि समय बच जाए हमारा। और तो ऐसे करके हम यहाँ पे इसको ले लिया, चारों को पकड़ेंगे, चारों को एक साथ ही, और नहीं 3 पकड़े गए हैं, ये 1 2 3 4 और 1 2 3 4 इनको पकड़ के ऐसे कर देते हैं बड़ा, ठीक है ना। और ये हो गया, ठीक है। तो स्पीकर्स लिस्ट में अब आपकी ये पिक्चर लंबी है ना, तो अब आप इसी प्रपोर्शन को कैरी करना चाह रहे हो। तो ये प्रपोर्शन क्या है, मान लो प्रपोर्शन क्या नाम, प्रपोर्शन इज अ डिफरेंट थिंग, रेशियो इज अ डिफरेंट थिंग। साइज कुछ भी हो सकता है, रेशियो अलग चीज है और साइज अलग चीज है। तो एक अच्छे डिजाइनर को दूर से ही चीज देख के उसका रेशियो समझ में आ जाना चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछूं, बताओ इस बॉक्स का रेशियो क्या है, तो क्या बोलोगे, क्या है इसका रेशियो? 1/1 तो नहीं है ना, 1/1 क्या है, स्क्वायर है कि नहीं है? Maybe 1:3. वेरी गुड, somebody said 1:3। so इसका रेशियो क्या है, 1:3 मान लेते हैं, जैसे है ना। बस मैंने कोई एग्जाम थोड़ा ना देने जाना है मैथमेटिक्स का जो पूरा ही परफेक्शन में बताओ, तो बस देख के आइडिया मिल जाना चाहिए। तो मैं यहाँ से गया और इस इमेज को मैंने दूसरी इमेज जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले उठाई थी, अब मैं उस वाली इमेज में चला गया। तो मेरे को रेशियो से क्रॉप करना है, कैसे करना है, रेशियो से तो क्रॉप। तो यहाँ पे जाके हमने रेशियो आ रहा है ना ऊपर, रेशियो, और रेशियो क्या डाल दो, 1:3, ठीक है जी। तो देखो 1:3 में वो क्रॉप करने लगेगा। तो आप चाहे इतना रखो चाहे इतना रखो, वो रेशियो वही चलाएगा स्क्रीन पे, समझ रहे ना। तो उससे आपको अंदाजा पता, इससे फायदा क्या होगा, तो फायदा ये होगा कि पिक्चर के कोई इंपॉर्टेंट एलिमेंट तो नहीं उड़ जाएंगे। अब मैं इसको 1/2 कर दूं, लेट से 1/2.5 कर देते हैं लेट से, तो थोड़ी सी यहाँ पे ये मिल गया और इसी रेशियो में पिक्चर कटेगी। तो जब आपको ये पिक्चर लगानी है मान लो उन बॉक्सेस में, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पिक्चर आएगी कितनी। तो आप अपना रेशियो सेट कर सकते हो। मेरे जैसा बंदा इधर से नहीं इधर से भी उठाएगा पिक्चर को, क्यों, क्योंकि मेरे को यदि फेस पूरा दिखाना है तो मजबूरी है, क्या करेंगे, नहीं तो वो तो फोटोशॉप में तिगड़मबाजी करके इसकी बैकग्राउंड लगानी पड़ेगी कुछ ना कुछ करके। लेकिन यदि वो बाकी आपके ऊपर है कि आप यदि छोटी पिक्चर आपके यहाँ चलती है, तो फिर आपको इस 2.1.25 में देख लेना कि आपको कौन सा हिस्सा जो है वो पिक्चर का चलेगा। तो मैंने मान लो ये रख लिया लेट से, और इसको डबल क्लिक करो तो ये आ गया, और इसको ले जाओ कहाँ पे, उस डॉक्यूमेंट में, और कहाँ पे लेके जाना चाहिए आपको, पहली लेयर पे, है ना। तो आपकी कोई भी मान लो ये वाली लेयर है पहली, मान लो इसमें लेके जाना है मेरे को, इसमें लेके जाना है, किसी में भी लेके जाना है, इसमें लेके जाना है, रेक्टेंगल 1 क्लिक करूंगा तो हमेशा ही रेक्टेंगल 1 के ऊपर ही आएगी, राइट। यहाँ पे रखो और बिंदास क्या करो, ऑल्ट कंट्रोल जी करके इसमें फिक्स कर दो, देखो। तो साइज नहीं हुआ, साइज की कोई गारंटी नहीं, ठीक है, रेशियो की गारंटी है। सो you can just put up like this, and then you wanted to have another speakers list, then let's say if you wanted to have somebody else, then you can even get somebody else, maybe like this picture, and then this picture can be taken as a copy image. I come to the Photoshop, I'll open this new document, I say clipboard, I say enter, and then I paste this picture. And then if I wanted to crop this, so the cropping can be done in one of the ways in ratios. The another thing can be done by putting in the size. इसमें size में भी, किसमें, size में, यहाँ देखो रेशियो बाय डिफॉल्ट भी आ रहे हैं कुछ, क्योंकि फिक्स रेशियोज भी होते हैं ना। फिक्स रेशियो कैसे होते हैं, जैसे इंस्टाग्राम की पिक्चर है या पोस्ट है तो उनके फिक्स रेशियो होते हैं, पहले से डिफाइंड होते हैं कि नहीं।
जैसे रील होती है या कोई चीज होती है, तो वो उनके रेशियो पहले से डिफाइंड है कि 5/7 में है या 6/9 की होती है वो एक्चुअली। तो आप यहाँ से पुटअप कर सकते हो किसी भी चीज को उस तरीके से, तो डिफॉल्ट भी उठा सकते हो। और ये इमेज है, तो इमेजेस के साइड है। अब आप साइजेस में भी ले सकते हो। मान लो मेरा साइज मेरे को चाहिए, मेरे को रेशियो में नहीं चाहिए, विड्थ और हाइट में चाहिए, तो मैंने यहाँ विड्थ और हाइट में जाके उठा लिया। तो मैं यहाँ पे मेरे को पिक्चर चाहिए मान लो 2 इंच बाई 3 इंच की, तो मैं क्या लिखूंगा 2 और 3। तो ये प्रोपोर्शन वैसे ही चलेगा, देख रहे हो क्रॉप टूल उसी प्रोपोर्शन में चल रहा है ना, फ्री होके नहीं चल रहा। हालांकि इसका कोई इस्तेमाल नहीं है कोई खास, यदि ऐसा नहीं भी करोगे तो कोई आफत नहीं आएगी, वहां जाके सेट करना पड़ेगा कुछ ना कुछ करके। तो लेकिन हाँ ये रहेगा कि एक आइडिया मिल जाएगा आपको। तो एज अ फोटोग्राफर जो एक ही तरह की बहुत सारी पिक्चरें ले आते हैं खींच खींच के एक ही तरह की, और एक ही डब्बा में, जैसे कोई ब्रोशर बना रहे हो उसमें सारी पिक्चरें, मान लो तुम्हारे को 500 पिक्चरें डालनी है एक ही साइज की, तो फिर वहां पे ये चीज हैंडी हो सकती है कि आप जाके जब इसको एंटर करोगे ना डबल क्लिक, तो देखो ये 2/3 की बन गई है पिक्चर, अरे 2 पिक्सल बाई 3 पिक्सल की बन गई। तो इसका क्या साइज है क्या साइज नहीं है, मेरे को इसको 2 इंच बाई 3 इंच करना है, बात खत्म। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 2 इंच 2IN बाई 3IN। अभी ये कितने की है कितने की नहीं है मेरे को कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मैं जब इसको फाइनल एंटर मारूंगा तो ये कितने बाई कितने की बन जाएगी 2 इंच बाई 3 इंच की। जाके देखें आप इमेज साइज है बन गई नहीं है 2 और बाई 3 की है 1.997 और 3 तो बन गई ना। फाइनल साइज आपका वही हो जाएगा। उससे क्या होगा कि आप एक ही साथ बैठ के, आप यदि डिजाइनर हैं और लेआउट कोई कर रहा है तो आप सारी पिक्चरों को 2/3 करके एक फोल्डर में सेव कर दो और कह दो ये ले जा भाई 2/3 में सब कर दी, बस जाके इंपोर्ट करता जा और लगाता जा, तेरे को कोई कुछ चक्कर नहीं है छोटा बड़ा करने का। अंडरस्टैंड? So this is how you can do, right? So this on a practical note, this can be an interesting thing. So the crop tool can be done this way, and then there is something called perspective crop. क्या है ये? Perspective crop. तो perspective crop को समझने की कोशिश करते हैं कि perspective crop क्या है, क्योंकि बहुत सारी पिक्चर perspective में भी होती है कि नहीं। जैसे मैं मान लो perspective पिक्चर खोल तो लें पहले, तो फिर देखेंगे क्या है। तो perspective buildings. Okay, so let's open up some images. ये रही है ऐसे इमेज, भाई फोटो तो क्लिक हो गई तो हो गई, फिर तो वो जो पिक्चर बन गई सो बन गई। अब कोई बंदे को अब तुम फ्रंट से पिक्चर खींच दो, बोल दो नहीं यार इसका बैक दिखाओ, कहा भाई बैक तो मैं शूट करके लाया हूँ अब वो कैसे दिखा देगा बैक, है कि नहीं। तो लेकिन पर्सपेक्टिव में फायदा क्या होता है कि फोटोशॉप किसी भी चीज के पर्सपेक्टिव को फ्रंट से भी दिखा देगा। कैसे दिखा देगा उसकी कोशिश करते हैं अपन। ये वाली पिक्चर को खोलते हैं एक सेकंड के लिए और इस पिक्चर को खोल लेते हैं, ये अच्छी लग रही है। कॉपी करते हैं इस इमेज को, कॉपी इमेज एंड विल कम टू द फोटोशॉप और इसको हमने यहाँ पेस्ट किया। अब यहाँ पे क्या चुन रहा हूं मैं, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। So the perspective crop tool has to be worked up. So what I wanted कि ये पर्सपेक्टिव था, एक बिल्डिंग लेफ्ट की साइड और एक बिल्डिंग राइट की साइड। मैं चाहता हूँ उसका फ्रंट व्यू देखना। क्या देखना है मेरे को, अल्टीमेट आउटपुट क्या चाहिए, इस बिल्डिंग का फ्रंट लुक। तो क्या करेंगे, आप इस पे ऐसे जाओ और ऐसे जाके देखो, देख रहे हैं ना, पर्सपेक्टिव अच्छे से सेट कर दो। सेट कर दिया और जब इसको डबल क्लिक करोगे तो इस बिल्डिंग का फ्रंट व्यू आपके सामने आ गया ना, वो बदलेगा, उसको करेक्शन करेगा। ये लिया, ये लिया और ये ले लिया। डबल क्लिक करोगे तो उसको जितना फ्रंट बना सकता है बनाने की कोशिश करेगा। तो ऐसी सिचुएशंस में आप जाके पर्सपेक्टिव पे ही काम करेगा ये, है ना, नॉर्मल चीज पे काम नहीं करेगा। नॉर्मल चीज पे तुम्हें भी समझ में आएगा इसको चलाना कैसे। तो दे कुड बी पर्सपेक्टिव, रोड पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, है ना, रोड पर्सपेक्टिव।
but it cannot लोगों का perspective change नहीं कर सकता ये tool. So you may not be that lucky, but it can definitely work on such things. So this can copy this image, come to the Photoshop, the driver, this thing. You wanted this to be a very smooth road. So what you can do, you can just go to the perspective crop, apply this perspective, and then just check this perspective and this key. Right, so I'll just do that. Just figuring this out, and then it will try to make it a straighten road. क्या सीधी रोड बनाने की कोशिश करेगा इसको ये. ओह, इसने कुछ ना बनाया, सब बर्बाद कर दिया. तो this is working more like एक सेकंड, एक कॉल है मेरे को लेनी पड़ेगी. हाँ मुआज, हाँ जी, गुड आफ्टरनून. अच्छा, चलो ठीक है. यहाँ पे कुछ ऐसा तो नहीं है, बता के जाने भाई. चलो ठीक. सो यू कैन ट्राई. हालांकि ये कोई बहुत ऐसा रोजमर्रा का टूल नहीं है, लेकिन हाँ, फॉर द सेक ऑफ इट आई जस्ट टोल्ड यू. तो एक तो इसको आप चेंज कर सकते हो. हालांकि फोटोशॉप की एक बहुत बड़ी समस्या है, ये रोड जैसी दिख रही है. मान लो तुम्हें वर्टिकल पिक्चर चाहिए हो तो क्या करोगे. मान लो मैंने ये क्रॉप टूल यहाँ पे ये क्रॉप टूल कर लिया. क्रॉप टूल सीधा वाला क्रॉप टूल, ये वाला नहीं, और ये वाला, इसके रेशो फेशो सब उड़ाने हो तो क्या कर सकते हो, यहाँ से जाके कभी भी पहले से आपको कोई सेटिंग वेटिंग परेशान कर रही है ना, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके बोल दो क्या, रीसेट टूल. तो पुरानी जितनी भी सेटिंग होंगी सब गायब हो जाएंगी, है ना. आई कैन जस्ट गो अवे विद दोस. तो अब मान लो कभी आपको ऐसी इमेज आई और मान लो ये पिक्चर आ गई, तो ये बड़ा मुसीबत का काम है, क्योंकि ये वाली रोड को कॉपी पेस्ट करके नहीं ला सकते, क्योंकि ये तो पर्सपेक्टिव में है ना, ये तो चौड़ी होती जा रही है ना आगे. तो आप इसका कोई भी एलिमेंट ला लोगे तो वो तो छोटा है. तो ये एक समस्या है, इसको हम आगे चल के इसका सोल्यूशन निकालेंगे, है ना. कि बच्चे ने निक्कर डाल रखी है, उसको पैंट में कैसे कन्वर्ट करना है. सो दिस कुड बी द अदर वे प्रॉब्लम्स. हम बड़े अच्छे से, मतलब फ्री होके माइंड से आसानी के साथ इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है. So we'll do that once the time comes. So this is the things. How many students in this particular group are pursuing the web design? कितने लोग हैं जो web design कर रहे हैं इस ग्रुप में? हैं आप हैं web design के student? तो उन लोगों के लिए क्रॉप टूल की तरह ही एक नया टूल है स्लाइस टूल. क्या है ये? बट ये एक्सक्लूसिवली मतलब 100% एक्सक्लूसिवली किन लोगों के लिए है? वेब डिजाइनर्स के लिए. ग्राफिक डिजाइनर्स का, वीडियो वालों का, फोटोग्राफर का इससे कोई लेना देना नहीं है. तो स्लाइस टूल है क्या, लेकिन थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं. स्लाइस टूल है क्या? बस इस टूल के बाद हम इस क्लास को विराम देंगे. तो ये स्लाइस टूल क्या करता है कि जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं एक वेब का टेम्पलेट ओपन कर लेता हूँ, यहीं से कर देता हूँ, है. So let's say if I just opened up any this तो छोटी सी इमेज है, थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं, तो लार्ज कर लिया, और इसमें हमने कोई इमेज ले ली. लेट्स से ये वाला है, तो alright, so what you can do, copy this image, I'll come to the Photoshop and यहाँ पे जाके ये वाला ये मैंने बनाया. तो क्या करेगा ये स्लाइस टूल क्या करता है कि स्लाइस टूल आपके पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को स्लाइस में कन्वर्ट कर देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में. बड़ी इमेज को किसमें कन्वर्ट कर देता है? छोटी छोटी इमेजेस से. तो छोटी छोटी इमेजेस को बहुत सारी बनाने से फायदा क्या होता है कि पेज की जो डाउनलोड स्पीड है वो फास्ट हो जाती है. फॉर एग्जांपल एक पिक्चर है 2 MB, अब इंटरनेट का कनेक्शन मान लो 2 MB के नहीं, चलो बड़ा कर देते हैं, समझ लेते हैं 10 MB. तो मान लो आपके कनेक्शन की स्पीड ठीक नहीं है, तो 10 MB की इमेज पूरी एक बार में डाउनलोड होगी.
धीरे 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 डाउनलोड होगी ना, तो वो एक ही बार में होगी। लेकिन यदि आप उसके 10 टुकड़े बना दो एक एक MB के, है? तो 1 2 3 4 5 करके जल्दी जल्दी खुल जाने लगे, तो सामने वाले को इससे आसानी हो जाती है, यूजर को आसानी हो जाती है। कुछ ही नंबर एक उसको ये पता चल जाता है कि तेजी से डाउनलोड हो रही है। दूसरा, आपको क्या फायदा होता है कि आप हर टुकड़े को एक नई फंक्शनैलिटी दे सकते हैं, ठीक है। सो आप स्लाइस टूल, इट कुड बी यूजफुल फॉर एवरीबॉडी फॉर अ टाइम बिंग, फॉर द सेक ऑफ इट आप सब लोग समझ लो इसको। तो मैं क्या करूंगा कि इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को, और दूसरा क्या है ना कि वेब डिजाइनर को काम करने में भी आसानी होती है। फॉर एग्जांपल मेरे को वॉच दिस वीडियो है, तो मैं इस वॉच दिस वीडियो को एक स्लाइस में डाल दिया, एक स्लाइस बना दी ना इसकी। अब मैं इसको चाहूं तो मैं YouTube से भी जोड़ सकता हूँ, वो हम देखते हैं कैसे। तो हमने इनको अलग अलग टुकड़ों में इसको बना दिया, साइड के अलग अलग। मैंने इसको एक स्लाइस बना दिया, इसी तरीके से इसकी स्लाइस बना दी, और इसकी स्लाइस बना दी। और यदि आप चाहते हो तो कंटेंट टाइटल वगैरह, तो आप इनकी भी स्लाइसेस बना सकते हो। और चूंकि ये टेक्स्ट कभी भी बंदा फोटोशॉप से नहीं लिखेगा, ये HTML में ही लिखेगा, तो वो क्या करेगा, उन स्लाइसेस को उड़ा देगा, उनको डाउनलोड करेगा ही नहीं अपने डिजाइन में। और इसी तरीके से आपने ये सब जो है इनको भी स्लाइस में कन्वर्ट कर दिया है ना, कि बंदे का माउस जैसे इधर जाए और वो ये हो जाए। अच्छा चलो, ये मैंने खूब सारी स्लाइस बना दी इस डिजाइन में, है ना। अब अपन इसको सेव करते हैं, राइट। तो Alt Control Shift S से मैंने क्या किया, इसको सेव किया। ये Alt Control Shift S दबाते हो तो इसको बोलते हैं सेव फॉर वेब। क्या बोलते हैं, सेव फॉर वेब। कंट्रोल S करते हो तो सेव हो जाता है, कंट्रोल S करते हो तो सेव एस हो जाता है। और Alt Control मतलब तीनों के तीनों की मेल पे दबा दो और S दबा दो तो क्या बनता है, सेव फॉर वेब। अब सेव फॉर वेब करते हैं। अब इसमें देखो, इसको हमने सेव किया, देखो ये क्या कर रहा है, इसको सारी स्लाइड्स का आइडिया हो रहा है, देख रहे हो आप यहाँ, एक एक स्लाइड्स को समझ पा रहा है, क्योंकि फोटोशॉप के टूल से बनी हुई है। और इसको करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ ऑप्टिमाइज, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ रहा है एक प्रीव्यू भी आ रहा है ना, प्रीव्यू। तो यदि आप नेट पे इसको चेक कराना चाहते हो स्पीड वगैरह, तो आप यहाँ से प्रीव्यू भी ले सकते हो। तो प्रीव्यू में क्या होएगा कि ये HTML खोल के दिखा देगा, इसका ब्राउजर में खोल देगा। तो देखो ब्राउजर में इसने ये सब खोल तो दिया, तो पूरी इमेज यहाँ पे पूरा कोड वोड आ गया। अब आप जैसे लोगों के लिए क्या है इसके अंदर, और दूसरा मैं चाहूँ इसको, तो इफ आई जस्ट हैपन टू बी JPGs वगैरह मैंने कर दिया, और मैंने इसको क्या किया, सेव। और सेव में जाने के बाद मैं डेस्कटॉप पे जाके एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, न्यू फोल्डर। उसका नाम, आज की जो क्लास है उसका नाम स्लाइस टूल रख देता हूँ। लेकिन तो हम यहाँ पे जाके इसको क्या किया, एक तो इसमें ऑप्शन आ रहा है इमेजेस को सेव करना, क्योंकि जितनी स्लाइस बनाई वो सब इमेज हैं अलग अलग। लेकिन मैं कहूँगा नहीं जी, मेरे को इमेजेस ही नहीं चाहिए, मुझे HTML एंड इमेजेस भी चाहिए। तो ये ले लो, देखते हैं क्या होता है। तो इसने क्या किया है, अब चल के देखते हैं उस फोल्डर में क्या हाल चाल है। तो ये फोल्डर खोल के देखते हैं हम लोग। Let's go and check. This is a slice tool, and if we go to the images, see, wow, so all the images, although we have not cropped them, but still they are being shown as what, they're being shown as different slices, right? हर एक इमेज, तो जो वेब डिजाइनर होगा वो अपने जब HTML बिल्डर पे काम करेगा, किसी एडिटर पे, ड्रीमवीवर पे या कैसे भी, वो इनको कॉल कर लेगा। जिसको कॉल करना उसको कर लेगा, जिसको नहीं कॉल करना वो उसको नहीं करेगा कॉल। तो उससे उसको आसानी हो जाएगी। अच्छा इतना ही नहीं, सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, मान लो मैंने चाहा, जैसे फॉर एग्जांपल ये बड़ा अच्छा है, यूट्यूब है ना, तो ये वाला है, तो मैं इधर पे इसका एक भाई टूल भी एक और भी है, ये क्या है, इसका नाम स्लाइस सिलेक्ट टूल। क्या है, स्लाइस सिलेक्ट। अब मैं इस पे ज्यादा क्लिक करता हूँ भाई, इस पे जैसे डबल क्लिक करोगे आप, तो मैं चाहता हूँ इस पे क्लिक करने के बाद कोई वीडियो चलेगा। ऑफ कोर्स यूट्यूब पे इसमें बना तो रखा है वॉच, लेकिन हम तो फोटोशॉप में बना रहे हैं ना इसको। लेकिन तुम में से कई लोग चाहें कि मैं अपनी एक छोटी सी वेबसाइट बना लेता हूँ फोटोशॉप में, तो बिल्कुल बना सकते हो भाई, यहीं से बना लो, यही फोटोशॉप में टेम्पलेट बनाओ, और यहाँ स्लाइड सिलेक्ट टूल पे जाके उस पर क्लिक करने पे क्या हो वो बना लो। एक काम करते हैं, यूट्यूब का लिंक डाल देते हैं, वो यहीं से अपन चलते हैं, यूट्यूब चलाते हैं कोई, है ना। तो यूट्यूब चलाया मैंने, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ बाइक बाइक स्टंट। चलो जी, इन्होंने बोला बाइक स्टंट, इनकी मान लेते हैं।
तो इधर पे मैंने कोई बाइक स्टंट उठा के URL को कॉपी करके यहाँ लाए और URL में पेस्ट मार दिया, कर दिया ना। और इसके नीचे ऑल्ट टैग भी डाल देते हैं। ऑल्ट टैग क्या होता है, जब उस लिंक पे जाते हो तो आप देखो, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे CD बाइक स्टंट हियर, ठीक है ना। मैसेज भी डाल सकते हैं, तो यहाँ लिखे यहाँ पे डाल सकते हो, कुछ भी आप डाल सकते हो। If you click, you will see the horrific bike stunt. कुछ भी लिख दो, आपकी मर्जी है। और इसको क्या कर दिया, ओके कर दिया है। अब इसको फिर से कंट्रोल शिफ्ट एस करते हैं, और इसको क्या कर देते हैं, प्रीव्यू करें और प्रीव्यू करके देखें। तो हमने सिर्फ एक भी काम किया ना, ऐसे ही आप सब पे कर सकते हो आप चाहोगे। और देखो अब इसके ऊपर जाएं, देखो नंबर 1 तो ये बन गया ना, होवर पे आते ही क्लिकेबल बन गया कि नहीं, इस पे नहीं बन रहा, इस पे नहीं बन रहा, और यहाँ आते क्लिकेबल बन गया। और इसके ऊपर देखो टेक्स्ट भी आने लग जाएगा, आ क्यों नहीं रहा, आना चाहिए ना। तो हो सकता है आप जब फाइनल HTML देखोगे तो उस पे आ जाएगा, लेकिन आप जहाँ यहाँ क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये चला गया कि नहीं, अंडरस्टूड। तो इवन आप छोटा सा भी आप अपना वेब टेम्पलेट बनाओ, जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग, जितने भी लोग अपना कोई भी टेम्पलेट बनाओ, उस टेम्पलेट को स्लाइस टूल की मदद से एक वेबसाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं। और HTML किसी को दे दो कि देखो ये सर ये देखो HTML, क्योंकि सारी इमेजेस तो वहीं पड़ी हुई है, तो आप अपना पोर्टफोलियो भी बना के दे सकते हो। इसको कहीं से जोड़ दो, इसका से जोड़ दो, YouTube से जोड़ दो, किसी भी चीज से अपनी प्रोफाइलों से जोड़ सकते हो कि नहीं। So you can make you smart, छोटी सी वेबसाइट भी बना सकते हो फोटोशॉप में। स्लाइस टूल में था ही क्या, है क्या नहीं। So it's interesting, so you try it. ये वेब डिजाइनर के लिए भले ही है, लेकिन यहाँ पे जो मेरे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं दूसरे कोर्सेज के, वो भी अपना जो ग्राफिक का पोर्टफोलियो है उसको भी इससे जोड़ सकते हैं, किसी भी चीज से अपना, यदि एज लॉन्ग एज उसका URL होगा तो उसको जोड़ा जा सकता है, कनेक्ट कर सकते हैं। So it's all for today. Anybody wants to ask any questions? किसी को कुछ पूछना है जी? अरे हैं ये सब भाग गए? No, sir. अच्छा, मुझे लगा It's fine. मैं ही बोले जा रहा हूँ। अच्छा, 13 लोग जुड़े हुए हैं अभी, चलो थैंक यू वेरी मच जी। तो ठीक है, आप लोग इसको करिए। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे एक इशू ये है कि मैं ना सैटरडे की क्लास थोड़ी जल्दी लेना चाहूँगा, तो आप लोग 1 hour अर्ली पे ऑनलाइन ले लूंगा मैं, ठीक है ना। सैटरडे आई डू नॉट नॉर्मली कम्स टू द ऑफिस, तो मैं थोड़ा प्रिपेयर ऑफिस रहता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को ना 11 o'clock पे जुड़ सकते हैं आप लोग। This is for everybody. How's 11 o'clock on Saturday? This class. Okay, sir. Shana, Yes, sir. please bear with me for the Saturdays, because Saturday मेरा पूरा दिन नहीं तो मैं utilize नहीं कर पाऊंगा, तो 11 o'clock is okay. If you want us earlier than 11 o'clock, that's even fine. तो आप 10 साढ़े 10 भी कर सकते हैं, I'll be very happy. तो हम करेंगे, हम कुछ नया टॉपिक उठाएंगे। अपन क्या करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में, कोई भी मत छोड़ना, देखो नेक्स्ट क्लास का मैं माहौल बना देता हूँ, तो हम लोग ब्रश कर लेंगे, ठीक है ना। तो आई थिंक हम क्रिएटिव टूल से शुरू करेंगे अब थोड़ा, है ना, तो इसको यूज कर लेंगे। सो ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, कीप प्रैक्टिसिंग। ये जो जितनी चीजें बताई हैं इनको प्रैक्टिस जरूर करते रहना, ठीक है ना। Yes, sir. I'm closing the Okay, session sir. now. Thank you very much.